to you by IEEE Zautin in collaboration with Bazme BME. So, everyone, before we start today, I want you all to assume this for a minute. Assume that you have the skills, you've put in the hard work, and you're ready to launch your own career. But when you look around, you see hundreds and thousands of individuals just like you competing for the same opportunities. Now, the question is, how would that make you feel? So, I'm gonna feel discouraged and frustrated, and most of you are going to agree with me. You're gonna ask yourself कि यार ये मेरी सारी efforts जो हैं ये are they really worth it? मतलब are they going to pay off? Because we work hard, we build skills, we get good grades, and still the competition, it feels like a huge ocean where everyone's trying to swim to the top. So today's session is exactly why we organized uh, today's session. We're going to talk about how to stand out in a saturated market and how to position ourselves so that opportunities actually come looking for us. So for that, we have our speaker today. We have Mr. Hasibur Rahman. He's the co-founder of Geeks of Kolachi, a full-stack development agency that has launched over 500 plus digital products across mobile, web, and AI. And with more than a decade of experience, Mr. Hasib specializes in high-performance mobile and web development, intelligent AI integrations, project executions that deliver results, and strategic consulting for startups and enterprises alike. And without any delay, I'm going to ask Mr. Hasib here to, guide us all. Over to you, Mr. Hasib. Thank you so much, Samir. And it's a pleasure for me to join this webinar. And I really appreciate the initiative by IEEE and the team. And yes, that is the topic that we will be covering. So just give me a second. Let me just pull up my slides and then we will actually start from there. Uh, Hello, everyone. So just as Samir mentioned about the topic, so we will be discussing about like how to stand out in a saturated market and just a brief introduction about myself. So my name is Hasibur Rahman and I am a computer science graduate from Ikra University. I have done my bachelor's back in 2017. And after that, during that time, I actually joined one of the company that named as PanaCloud. So I started there as as a boot camper. And during my studies, I was working there and I was exploring and working on multiple projects, including like the mobile application and web applications. And from there, I started my development career. So it's been like now you can say a decade of industry experience, and I've been working with mostly international clients because Panacloud was working mostly with the US clients. So I was lucky enough to work with the US clients and get to know about them, how they are thinking, how they usually take the things, and things like that. And fast forward in 2019, I started a software development company, Geeks of Kolachi, and there I started it with three of my co-founders, and we started initially with a small office, and then gradually we built up our team, and now we have around 80 individuals working with us like as a team, and we have an auspicious office in the center of the city at Shara Faisal. So we are providing the services mostly in mobile applications development, web application development, and AI and etc. So we are working on those stacks, and mostly we are working with the international clients like US, UK, and the Middle East, Australia. So we have like a large exposure about the international market and things like that. And I have found some of the gaps and like some of the things that the students can actually fill out to make sure that they are fit and they are ready to
dive into the market. So we will be discussing those things today. So I will be starting with this picture first. I added this picture because you guys once you get graduated from your universities, you guys face this scenario. Most of the people usually face this scenario, like in which if we talk about like jobs, they need experience, and for experience you need job. तो हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों का ये होता है कि वो जब ग्रेजुएट हो रहे होते हैं या ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो उनके पास ये इशू आता है कि उन्हें जॉब चाहिए और जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए और जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये एक साइकिल चल रहा होता है। तो इस साइकिल को जो है वो ब्रेक करना और इसको हम किस तरीके से लेके चलेंगे, ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट चीज होती है मार्केट में रहने के लिए। बिकॉज हमारे पास जो है वो एट अ टाइम काफी सारी यूनिवर्सिटीज में काफी सारे लोग ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। अब जॉब्स उस तरीके से जो है वो मार्केट में जब होती है तो उनको देखा जाता है कि यार हमें किस बेस्ट कैंडिडेट को लेना है। आगे जब हम इस वेबिनार में आगे जाएंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू गाइस हाउ वी यूजुअली सेलेक्ट द कैंडिडेट्स व्हेन वी आर हायरिंग फॉर गीक्स ऑफ कुलाची, और लाइक इन जनरल जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो किन किन चीजों को देख रहे होते हैं जिनकी बेस पे हम लोग हायरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, एजेंडा जो हमारा आज का होगा उसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्यों सैचुरेटेड है, फिर उसके बाद कॉमन जो इश्यूज आ रहे होते हैं वो देखेंगे, फिर हम एक चीज डिस्कस करेंगे स्टैंड फ्रेमवर्क। इसमें एक्चुअली हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है वो स्टैंड कर सकते हैं मार्केट में। उसके बाद फिर हम कुछ थोड़ी सी बात करेंगे जो कि लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं और जो स्किल्स अभी चाहिए 2025 में और उससे आगे। एंड देन सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे जो कि आप अपने जो टैलेंट है उसको शोकेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। देन आई विल शेयर विद यू द रियल लाइफ स्टोरीज, लाइक कि हम लोग किस तरीके से रियल लाइफ में देखते हैं चीजों को। और उसके बाद फिर आपका एक छोटा सा एक्शन प्लान मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्यूए। अच्छा, सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो मार्केट सैचुरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आप देखेंगे कि एक साथ एक बैच में मोर और लेस जो है वो 50 to 60 लोग ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं हमारे शहर में। देन वी हैव मल्टीपल यूनिवर्सिटीज इन आवर प्रोविंस, देन वी हैव मल्टीपल यूनिवर्सिटीज इन आवर कंट्री, एंड देन ग्लोबली। सो बहुत सारे लोग जो है वो ग्रेजुएट हो रहे होते हैं एट अ टाइम। अब उसमें जो है वो हमारे पास जब हम बात करते हैं जॉब्स वगैरह की तो उसमें हमारे पास आप देखेंगे कि जो रेज्यूमेज या पोर्टफोलियोज होते हैं वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं। मतलब कि आपके पास जो है वो आपके साथ जो कोलीग्स होंगे उन्होंने भी सेम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई होगी। देयर माइट बी सम डिफरेंस बिटवीन द जीपीएस एंड थिंग्स लाइक दैट, लेकिन जो है वो उनकी ओवरऑल जो है वो आप लोगों की सेम होगी। फिर एक और इशू जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं वो ये देखते हैं कि आपका जो है वो निश आपने स्पेसिफिक नहीं की हुई होती है, या फिर आपने अपने आप को क्लियरली पोजीशन नहीं किया हुआ होता। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, बिकॉज मेरा मोस्टली जो एक्सपीरियंस है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की साइड पर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जनरलाइज एग्जांपल दे सकूं। लेकिन अगर हम बात करें तो मोस्टली लोग ये होता है कि जब ग्रेजुएट हो रहे होते हैं तो दे डोंट नो कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है। बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट आई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इसमें भी बहुत सारी जो है वो चीजें हैं। लाइक कि आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है, आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, आपके पास सॉफ्टवेयर डिजाइन का डिपार्टमेंट है, आपके पास डेवऑप्स का डिपार्टमेंट है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत सारी जो है वो उसमें निशित होती हैं। लेकिन आपको उसमें डिसाइड करना होता है कि आप किस किस एक तरफ डोमेन की तरफ जो है वो जाना चाह रहे हैं। तो ये वाली चीज एक बहुत ज्यादा हम फील करते हैं कि यार ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा जो है वो आ रही होती है। और उसके बाद जो है वो एक और चीज के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो प्रूफ चाहते हैं कि यार आपने इससे पहले कुछ किया हुआ हो या आपके कुछ चीजें हों। अब वो हम बात करेंगे आगे चल के कि हमने किन चीजों के बारे से अपना अपना जो प्रूफ बनाना है, तो इन चीजों पे हम बात करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसके हवाले से जो है जब हम बात करते हैं कि यार स्ट्रगल करते हैं, तो अब मैंने पहले प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया आप लोगों को। अब हम उस पर बात करते हैं कि यार उसमें स्ट्रगल हम क्यों कर रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है कि हमारे, जैसे मैंने अभी बात की, कि हमारे पास डिग्रीज जो है वो तकरीबन, अगर हम एक बैच की बात करते हैं तो अगर 50 लोग उससे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो वी हैव लाइक एवरीवन हैव द डिग्रीज। ठीक है। लेकिन जो है वो रियल वर्ल्ड का कोई उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसके अलावा उनके पास एक चीज जो सबसे ज्यादा वो होती है, वीक होती है, वो मैंने देखा है पर्सनल ब्रांडिंग का। ऑल दो आईटी इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि आईटी इंडस्ट्री में लोग जो है वो फिर भी बहुत ज्यादा कर लेते हैं। लाइक के हम जो है वो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं गिटहब वगैरह और लिंक्डइन और इन चीजों को। बट जो अदर इंडस्ट्रीज हैं, लाइक मैं बात करता हूँ अगर मैकेनिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, या जो है इलेक्ट्रिकल की,
तो उसमें ये होता है कि उसमें पर्सनल ब्रांडिंग उस तरीके से जो है वो इतना ज्यादा उसका रुझान नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। मैं प्रीवियस जो सेशंस हैं वो देख रहा था यूट्यूब पर IEEE के, तो उसमें मैंने देखा था कि IEEE के जो वेबिनार्स हैं उनमें उन्होंने डिस्कस किया था बहुत सारी जगहों पे, लाइक दे हैव डिटेल्ड टॉपिक डिस्कशन ओवर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन। फिर उनके इस हवाले से जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से जो है मैं देख रहा था कि बहुत सारे सेशंस जो है वहाँ पर हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग उनको भी देखिएगा। ठीक है। और एक और चीज जो है वो पुअर नेटवर्किंग और नो विजिबिलिटी, ये क्या चीज है बेसिकली। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुना होगा ये वाला एक मशहूर जो है बात के, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। बेसिकली होता क्या है कि जब आप इंडस्ट्री में नए नए आते हैं या आप अभी ग्रेजुएट हो रहे होते हैं तो आपके कनेक्शन वगैरह नहीं होते हैं। तो उसमें फिर यूजुअली क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई रेफरल जान पहचान वगैरह वाला है तो उसको CV दे दी या इस किस्म की चीजें होती है। बट नाउ डेज इतना ज्यादा डिजिटल चीजें अवेलेबल है, इतना सब कुछ है कि वी कैन बिल्ड आवर पोर्टफोलियो, वी कैन बिल्ड आवर नेटवर्क, और वी कैन नेटवर्क विद पीपल, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बात कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट कि हम लोग किस तरीके से ये चीजें करेंगे आगे। ठीक है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, स्टैंड जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमारे मेन जो होगा इस वेबिनार का पार्ट, वो हम लोग बात कर रहे हैं उस पर, स्टैंड पर। तो स्टैंड बेसिकली सबसे पहली बात जो मैंने की स्पेशलाइज की कि हम जो है ना एक निश एरिया, जैसे लेट सपोज अगर आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कोई भी एक जो निश होगी उसको आप जो है वो देख लें। यूजुअली क्या होता है कि यूजुअली जो लोग होते हैं वो ये चीजें सिलेक्ट कर रहे होते हैं आफ्टर जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद वो देखते हैं कि यार मुझे कहीं इंटर्नशिप मिल जाए, और उसके बाद मैं फिर उसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड करूँ कि भाई मुझे जिसमें भी इंटर्नशिप मिल जाएगी मैं वहां से आगे कैरी करूंगा। ये अप्रोच जो है वो पहले से फॉलो होती जा रही है। बट नाउ डेज क्या है कि आपके पास अब जो है वो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। सो ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी टाइम आप ये चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। लाइक मेरा इंटरेस्ट जो है वो IoT की तरफ है, मेरा इंटरेस्ट AI की तरफ है, मेरा इंटरेस्ट रोबोटिक्स की तरफ है, या मेरा इंटरेस्ट जो है वो सर्किट्स की तरफ है, या जिसकी तरफ है मैं उस तरफ उसकी स्पेसिफिक निश को वो करके उसको स्पेशलाइज करूँ। ठीक है। स्पेशलाइजेशन बहुत मैटर करती है आपकी, क्या स्पेशलाइजेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए किसी चीज में। बिकॉज इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले कि अगर आपके दिल में दर्द हो रहा होगा तो आप जो है वो किसी कार्डियो के डॉक्टर को दिखाएंगे, ना कि जनरल फिजिशियन को। तो इसी तरीके से जो है वो अब हमारे पास ये चीज आ गई है कि पहले ये होता था कि यार जनरलाइज जो है वो चल जाता था, बट अब जो है वो हर चीज की स्पेशलाइजेशन आ गई है। तो अब हर चीज की स्पेशलाइजेशन जो है वो आपको करनी चाहिए और उसकी बेस पर आप जो है वो एक्सेल कर सकते हैं अपने कैरियर में। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो हमारे पास है स्टैंड में T, दैट इज ट्रैक रिकॉर्ड के आपका जो है वो आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है, आपने कोई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की हुई है, आपने कोई जो है वो पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आपने जो है वो कोई पब्लिश वर्क का मतलब होगा कि आपने कहीं पर कोई अपना आर्टिकल लिखा है, या कहीं पर आपका कोई जो है वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, या थिंग्स लाइक दैट कि आप जो है वो अपना एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं और उसको जो है वो किस तरीके से आप ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है। ये चीज हमारे पास T पॉइंट हो गया। उसके बाद ऑथेंटिक ब्रांड। अब यहाँ देखिए जैसे मैंने बात की थी कि IT में हमारे पास लोग जो है वो लिंक्डइन हो गया और गिटहब वगैरह के थ्रू करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है वो आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं, कुछ प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, कुछ प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जो कि बाकी डोमेन्स के, इंजीनियरिंग के डोमेन्स के लिए अवेलेबल है। वहां पर हम करते क्या है, बिकॉज अभी आप जब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हैं तो उस टाइम पर बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि आप इंटर्नशिप नहीं कर पाते हैं ड्यू टू टाइमिंग्स इशू, ड्यू टू और बहुत सारी चीजें होती है, बीच में एग्जाम्स होते हैं और असाइनमेंट्स और बहुत सारी चीजें होती है। तो व्हाट यूजुअली यू कैन डू इज आप जो है वो कुछ साइड प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम कर लें, या जो है वो आप कोई एक तरीके से जो आपके प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, या आपकी कोई रिसर्च है या कोई आर्टिकल है या कोई इस किस्म की चीजों पर काम करके आप जो है वो अपने आप का एक जो है वो ऑथेंटिक ब्रांड बना सकते हैं अपना। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो नेटवर्क है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपने एक निश ले ली, उसके बाद आपने जो है वो अपने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लिए, वो सब कुछ कर लिया, और उसके साथ आपने जो है वो अपना एक ऑथेंटिक ब्रांड बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्क। अभी जैसे मैंने बात की कि योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ, तो वो वाली चीज है। अब इसको आप कैसे करेंगे, बिकॉज अभी आप जॉब नहीं कर रहे हैं,
तो अभी आप विजिबल कैसे होंगे, उसके लिए तरीकाकार जो है वो आप जैसे लिंक्डइन के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं, आप एक्चुअल में जो आपके इवेंट्स हो रहे हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूँ कराची में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, डिफरेंट जगहों पे इवेंट्स हो रहे होते हैं, आप वहां जा सकते हैं, वहां लोगों से मिल सकते हैं, इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे आप वहां पर बात कर सकते हैं, आप उनको लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। और ये काम आपने ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी ही करना है, लाइक के यूनिवर्सिटी के बाद नहीं। अब इसमें बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि सामने वाला आपको जानता नहीं होगा या कुछ है, बट स्टिल लाइक यू कैन इन लिंक्डइन या आप कहीं सेमिनार में जाते हैं या कहीं पर भी, तो आप जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। प्लस लिंक्डइन पर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप नोट्स वगैरह के थ्रू और इस तरीके से आप जो है वो लोगों को पर्सनलाइज मैसेजेस वगैरह भेज के और आप जो है वो कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बाकी जो डिटेल्स लिंक्डइन वगैरह को मैनेज करना है वो सारी चीजें, उसके लिए जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप वहां पर कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि यार नेटवर्क आपको अपना बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर डिलीवर रिजल्ट है कि भाई आपने जो है वो अगर कोई साइड प्रोजेक्ट वगैरह किया हुआ है तो उसका क्या रिजल्ट था, क्या था, इस तरीके से आप जो है वो रिजल्ट अपने डिलीवर करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एक फ्रेमवर्क है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पूरा अपना जो है ना वो एक तरीके से हम कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं इस मार्केट में या ओवरऑल। तो ये उस हवाले से हमने जो है वो मेन चीजें जो है वो डिस्कस की हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पर मैं मजीद मेंशन करना चाहूंगा जो कि है हमारी एक तरीके से अभी इस वक्त की डिमांड, ठीक है। अब जो है 2025 में बहुत ज्यादा चेंजेस आई हैं, 2024 में और 25 में खासकर। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा। तो बीइंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक्सपर्ट और बीइंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर्सन, हम लोगों को भी बहुत सारी चीजों में जो है वो आगे रहना पड़ता है। तो अभी कल या परसों जो है 8 अगस्त को जीपीटी ने 5 भी लॉन्च किया है, ठीक है। अब हमारे पास है क्या, पहले होता था कि हमारे पास जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से टीचिंग होती थी, ट्रेडिशनल तरीके से जो है वो जॉब हंटिंग होती थी, वो सब कुछ होता था। अब चीजें काफी चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो स्किल्स आगे की हैं वो सबसे पहले जैसे मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल पढ़ेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या और मैंने क्यों इसको यहाँ पर मेंशन किया है। बट दैट इज समथिंग जो कि इनडिपेंडेंट ऑफ समझ ले डिग्री प्रोग्राम है, मगर ये जो है एक बेसिक स्किल है जो आप लोगों ने सीखनी है लाजमी, ताकि आपको जो है वो एक मार्केट में एज मिल सके, ठीक है। इसके बाद सिस्टम थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब ये क्या चीज है। बेसिकली देखिए, जब ग्रेजुएट होते हैं ना हमारे पास, तो मोस्टली हमारे पास जो माइंडसेट एक बना हुआ होता है वो होता है कि यार हमने मार्क्स लेने हैं, हमने जीपीए अच्छी लेनी है और हमने जो है वो अच्छे रिजल्ट लेने हैं, ठीक है। दैट इज वन थिंग। लेकिन ऑन द अदर साइड जब आप रियल मार्केट में आते हैं या रियल इंडस्ट्री में आते हैं, तो वहां पर आपके ग्रेड से ज्यादा ये चीज देखी जाती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल कितनी अच्छी है, ठीक है। बिकॉज वो आपको पे करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम में हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है कि यार आपने वन साइडेड अपना जो है वो जो आपकी ग्रेड्स वगैरह है उनको मेंटेन करना है, ऑन सेम साइड आपने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी अपनी इंप्रूव करना है, ठीक है। आपके अपने डोमेन में रहते हुए जो जो उसमें आपको नजर आता है कि इसकी आप जो है वो एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आप कोई देखें कि कोई आपको लगती है छोटी सी प्रॉब्लम जो कि आपके उसमें है, उसको आप सिमुलेट कर सकते हैं, या उसका कोई आपके पास सोल्यूशन है तो आप उसको सिमुलेट करके एक जो है वो अपना साइड प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद डेटा लिटरेसी हमारी, ये सारी मैंने वो स्किल्स देखी है जो तकरीबन जो है वो तकरीबन डिग्री प्रोग्राम से जो है वो लिंक करती है, लाइक के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, डेटा लिटरेसी हो गई। ये सारी चीजें वो है जो सारी के सारे डिग्री प्रोग्राम्स जो है उनमें ये आती है आपकी, क्या उसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेगी, ठीक है। देन ये वर्जन कंट्रोल, ये एक एग्जांपल है सीएस वालों के लिए कि यार हमारे पास जो है वो जब हम वो करते हैं अपने प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होता है, तो उस टाइम पर हम लोग अक्सर कोलैबोरेट कर रहे होते हैं आपस में टीम्स में, तो उसके लिए हम लोग जो है वो गिटहब को यूज कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं या इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, उन तरीके से जो है वो उनको एक्सप्लोर करके और उन पर थोड़ी बहुत अपनी कमांड कर सकते हैं ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम। आपको यूनिवर्सिटी के बाद तो मौका मिलेगा उन पर काम करने के लिए, बट यूजुअली आपको नो हाउ अगर होगी तो आप उस तरीके से उसको जो है वो ज्यादा जल्दी आप स्टैंड आउट कर रहे होंगे इंडस्ट्री में, ठीक है। कि एक अगर हम दो ग्रेजुएट्स की बात करते हैं, एक को जो है वो आइडिया नहीं होगा और एक को आइडिया होगा चीजों का, डेफिनेटली जो एम्प्लॉयर होगा वो कोशिश करेगा कि यार हम जो है वो उस बंदे को ना जिसको बेसिक आइडिया हो, बिकॉज
जब भी हम एज एन एम्प्लॉयर किसी टीम मेंबर को ऐड कर रहे होते हैं, तो हमारे पास बिहाइंड द सीन्स हमारे माइंड में ये भी चल रहा होता है कि यार हम लोग जो है वो इस बंदे को ट्रेन करके और कितने टाइम में हम इसको रेडी कर सकते हैं कि ये उसके बाद हमारे लिए प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, तो एज एन एम्प्लॉयर हम ये चीज सोच रहे होते हैं, तो उस हवाले से अगर आपको जो है वो पहले से आइडिया होगा चीजों का, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू एन एज। ठीक है, फिर लास्ट थिंग, जैसे मैंने बात की थी पर्सनल ब्रांडिंग की, तो उस तरीके से आप जो है वो इसको कर रहे होते हैं कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी बना रहे होते हैं। दैट इंक्लूड्स लाइक लिंक्डइन हो गया, फिर उसके बाद गिटहब पर हो गया, या डिजाइनर्स के लिए बिहेंस है। इसी तरीके से जो है वो कुछ और टूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं डिफरेंट जो है वो डोमेन्स के लिए। ठीक है। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये मैं एडिशनली इसमें ऐड करना चाह रहा था। बेसिकली देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, इट इज नॉट अबाउट लाइक कोडिंग। ये है कि आप जो है वो एआई से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। देखिए, एआई, चैट जीपीटी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, बट चैट जीपीटी को यूज करना इज अ डिफरेंट थिंग, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ डिफरेंट थिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, इट इज अ वे इन विच यू कैन कम्युनिकेट विद एआई, कि आप जो है वो अपना काम कितना एफिशिएंटली और कितना स्मार्टली एआई के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। एआई को यूज हर कोई कर सकता है। ठीक है, एआई को आप कुछ भी बताएंगे वो थोड़ा बहुत कर लेगा, बट आप कितना ज्यादा उसको प्रॉपरली जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी चीज पर आप जो है वो उस पर आपकी कमांड होगी। लाइक, जब मैं अपना कोई काम कर रहा होता हूँ तो ऐसा होता है कि मैं एक प्रॉम्प्ट से अपना पूरा काम कर लेता हूँ। मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं, उनको पांच पांच छह छह प्रॉम्प्ट्स के थ्रू और उसके बाद ट्वीकिंग करके उस काम को पूरा करना पड़ता है। सो दैट इज द थिंग, कि अगर आपका जो है वो प्रॉपरली आपने एआई को, बिकॉज एआई क्या है, एआई को बहुत सारी जगहों पर आपको गाइड करना पड़ता है कि भाई मैंने ये काम करना है, इस तरीके से करना है, और उसका मुझे ये रिजल्ट चाहिए। अगर आप जो है वो प्रॉपरली उसको बताएंगे, तो वो उस तरीके से आपको काम करके और जो है वो आपका काम आसान करेगा। ठीक है, ये वही वाली बात है कि अक्सर हम लोग सुन रहे होते हैं कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमन। ठीक है, तो इसको मैं एक जगह पढ़ रहा था, तो किसी ने लिखा था कि एआई विल ओनली रिप्लेस ह्यूमन दैट डोंट नो हाउ टू टॉक टू एआई। ठीक है, तो जब आप एआई से बात करना जानते होगे, तो आप उसको अपने हिसाब से अपने काम को स्मार्टली करने के लिए यूटिलाइज करोगे, तो दैट विल बी वेरी गेम चेंजर फॉर यू इन द इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बाद जो है, जैसे मैंने बात की कि यूज केस फॉर एवरीवन, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आईटी के लोग हैं, वो इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कोडिंग वगैरह में यूज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आप उसमें कोई सर्किट डायग्राम वगैरह या कोई इस किस्म की चीजें जो है वो उनको देखने के लिए, या उनकी जो है वो उनकी एनालिसिस के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल में है, इसी तरीके से आपके पास जो है वो बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। नाउ डेज वी आर गेटिंग क्यूरीज फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट फ्रॉम यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, और वहां पर हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं, दे वांट के उनके पास ऑलरेडी उनकी कंपनीज हैं, या वो ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे वांट एआई टू इंटीग्रेट इनटू देयर सिस्टम। तो हम लोग अभी इन चीजों पर काम कर रहे हैं कि लाइक जिसमें जो है वो ये इस किस्म की चीजें, और जो है वो एआई डिटेक्ट करे और एआई उनको सजेस्ट करे और रिकमेंडेशन करे। तो इस चीज को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ साथ क्या आप लोगों के यहाँ पर जो है वो किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को और एआई को यूज करते हुए अपना जो है वो काम को पास कर सकते हैं। तो ये आपकी टीवी पर जब ये चीज होगी, या आपके पोर्टफोलियो में ये चीज होगी, तो ये आपको एक्स्ट्रा एज देगी। ठीक है। अच्छा, इसके लिए टूल्स जो है वो सिंपल है कि आपके पास यूट्यूब है। यूट्यूब पर आप सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिखेंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ रिजल्ट। ठीक है, उसमें से आपको जिस भी ट्विटर का स्टाइल अच्छा लग रहा है सुनने का, यू कैन कंटिन्यू विद हिम और हर, और जो है वो उस तरीके से आप सीख सकते हैं। अब तो बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं टूल्स। एंड अगर आपको जो है वो इसके अलावा चाहिए, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट IEEE और यूनिवर्सिटी कि आप लोगों को लर्निंग पोर्टल अवेलेबल है या नहीं, लाइक यूडीमी और एनी अदर। वहां पर भी आपको कोर्सेज मिल जाते हैं जिनसे आप देख सकते हैं, बट यूट्यूब इज इनफ। आई वाज पर्सनली लुकिंग इनटू यूट्यूब, और आप उससे जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं टूल्स की बात कर रहा था, तो कुछ टूल्स जो है वो मैं देख रहा था कि जो कि अवेलेबल हैं, लाइक इजी ईडीए है, सर्किट वर्क्स है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिनको आप मल्टीपल जो आपके डोमेन होते हैं उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टिंकर कैड की यहाँ बात हो रही है, ये जो है वो सिमुलेशन है आर्डिनो की प्रोटोटाइपिंग और इन चीजों के लिए। तो आपके पास एक जो है वो, अगर आपने अपना जो निश है वो सेलेक्ट कर लिया कि मैंने आर्डिनो और इस तरफ जाना है, तो आप जो है वो अपने साइड प्रोजेक्ट इस पर रहते हुए बना सकते हैं सिमुलेशन करके, और उनको आप जो है वो
डाल सकते हैं अपने गिटहब पर, अपनी बाकी जगह या अपनी जो है वो सीवीज में और बाकी जगहों पे। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कि व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस थिंग, तो मैं ये देख रहा था कि हमारे पास जैसे गिटहब है वहां पर तो हम लोग कोड वगैरह डाल देते हैं। वी हैव अनदर थिंग दैट इज नोशन। तो नोशन जो है वो बेसिकली टेक्स्ट और इस किस्म के डॉक्यूमेंटेशन और इन चीजों के लिए होता है। तो व्हाट यू कैन डू इज लाइक, अगर आप उस जो भी आपने साइड प्रोजेक्ट बनाया है या जो कुछ भी बनाया है उसका आप जो है वो एक तरीके से एक पेज बनाकर और उसके अंदर उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। एंड देन यू कैन शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद एनी एनीवेयर यू वांट टू शेयर। तो उस तरीके से क्या होगा कि नोशन में आपका जो है वो एक फोल्डर बनाकर वहां पर भी आप अपना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो है वो पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो कि आपको जरूरी होता है बिफोर जंपिंग इनटू द इंडस्ट्री फॉर जॉब। वही वाली बात जो मैंने पहले स्लाइड की थी कि जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। तो दिस इज हाउ यू आर बिल्डिंग योर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये मैंने एक रियल एग्जांपल लिया है। ये बेसिकली स्क्रीनशॉट है हमारे एक हमारे पास जो गीक ऑफ कोलाची में सीरीज आती है उनमें से एक सीवी का। अब आप देखें, ये एक फ्रेश ग्रेजुएट की सीवी है। ठीक है, उन्होंने एक्सपीरियंस भी इसमें मेंशन किया हुआ है, उन्होंने लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन भी मेंशन किया हुआ है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट्स जो है ये प्रोजेक्ट उनके यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट थे, ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन उन्होंने इसकी पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसमें तो उन्होंने जो है वो इसका गिटहब भी लिखा हुआ है और फिर इसकी लिंक्डइन पोस्ट भी लिखी हुई है। देख रहे, प्रॉपरली उन्होंने अलाइन किया हुआ है कि भाई उन्होंने ये उनका एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो भी थ्रू आउट उनके यूनिवर्सिटी था, लाइक के छोटे मोटे उन्होंने साइड प्रोजेक्ट कर लिए या इस किस्म की चीजें कर ली। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास ये एक और सीवी है जो कि आप देखें कि उसमें जो है वो सिर्फ एक मेन एक्सपीरियंस लिखा हुआ है और उसके बाद जो है वो वॉलंटियरिंग लिखी हुई है, एजुकेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, जब एक एम्प्लॉयर के पास ये दोनों सीवीज आएंगी, तो डोंट यू थिंक कि जो फर्स्ट वाली सीवी है दैट विल मेक अ स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट देन द सेकंड वन? नॉर्मली जो है वो यही होता है कि हम जो है वो देख रहे होते हैं कि यार प्योर जो यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने से पहले या यूनिवर्सिटी अभी इस वक्त किस बंदे ने ज्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है, और हम कोशिश करते हैं कि हम फिर उनको जो है वो ज्यादा प्रॉपरली उनको हायर करने की हमारी कोशिश होती है कि यार हम उनको हायर करें जिन्होंने थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया हुआ हो। तो ये मैंने आपके सामने रियल एग्जांपल रखी है कि अगर हमारे पास दो सीरीज हैं। अच्छा, अब इसको जो सेकंड वाली सीवी है इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसीलिए मैंने ये दोनों स्नाइपर डाले हैं। अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाली सीवी में उन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लिखे हैं। ठीक है, और उन प्रोजेक्ट्स को डिफाइन किया हुआ है और उनका लिंक्डइन डाला हुआ है और उनका जो है वो गिटहब का कोड डाला हुआ है। अब सेकंड वाले में आप अगर देखेंगे तो किया हुआ उन्होंने भी जो है वो, अगर आप देखें, लेजर सिक्योरिटी सिस्टम, कार रेंटल सिस्टम एंड जो है वो स्केलेबल मोडेस्टी वेयर वेब शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, किए हुए उन्होंने भी 3 प्रोजेक्ट हैं, बट उन्होंने उस तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो है वो एक तरीके से अगर मैं एज अ जब एम्प्लॉयर देखता हूँ, बिकॉज वी रिसीव लाइक हंड्रेड ऑफ सीवीज। ठीक है, तो उसकी बेस पर फिर मुझे क्या लगेगा कि यार इनका एक्सपीरियंस कम है एंड फर्स्ट वाले का ज्यादा है, जबकि ऑन पेपर दे बोथ हैव डन 3 प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग देयर ड्यूरिंग देयर यूनिवर्सिटी टाइम। तो ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो है वो कैसे स्टैंड आउट कर रहे हैं कि यार आपने अपनी प्रॉपर सीवी बनाई हुई है, प्रॉपर आपका जो है वो उसके अंदर आपने अपने एक्स प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं जो कि आपने ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी किए हैं, या अगर आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है तो वो मेंशन की हुई है, या आपने जो है वो कोई और कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं या जो है वो सर्टिफिकेशन है वो सब की हुई है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने आप को स्टैंड आउट करते हैं कि यार आप जो है वो नजर आओ इंडस्ट्री में। ठीक है, अच्छा, ये अब एक जो है ना चेकलिस्ट मैंने बनाई है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है वो किस तरीके से अपना जो अभी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो क्लीन योर लिंक्डइन। लिंक्डइन के हवाले से आपको जो है वो अपना लिंक्डइन प्रॉपर करें, ताकि आप जो है वो उस तरीके से उसको एक तरीके से वो आपका लिंक्डइन आपको जो है वो इंटरनेशनली या नेशनली आपको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, आपकी जो एक्सपीरियंस है या आपकी जो निश है या आपकी जो एक तरीके से इंटरेस्ट है उसको आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो। नाउ डेज बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट करती है एंड देन दे हायर द पीपल। वी आल्सो डू दैट। हमारे पास अक्सर ऐसा होता है। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास कुछ लोग हैं, दोज आर फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड वी हायर देम बेस्ड ऑन देयर लिंक्डइन प्रेजेंस। लाइक वो अपने प्रोजेक्ट्स डाल रहे थे
देन वी सॉ कि उन्होंने जो है वो अच्छी वो कोई जो है वो यूनिवर्सिटी के डीन लिस्ट में शामिल हुआ है या कोई इस किस्म का, तो दी एम्प्लॉयर्स नोटिस दोज थिंग्स, और उसकी बेस पे जो है वो फिर आपको वो रीच आउट करते हैं। वी हैव हायर्ड मल्टीपल पीपल फ्रॉम लिंक्डइन थ्रू दिस अप्रोच। ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग, जैसे मैंने बात की थी कि आप अपनी एक निश डिफाइन कर लें, नो मैटर कि आप अभी फिफ्थ सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, एट सेमेस्टर में है, आप अपनी एक निश जो है ना अपने इंटरेस्ट की बेस पे एक निश डिसाइड करें, और उसको जो है ना वो कोशिश करें कि उसमें आप स्पेशलाइज हो। ठीक है, उसका आप देखें कि यार उसमें जो है जो स्पेशलाइज लोग हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल 2025 में, और आगे क्या ट्रेंड होगा इसका। इसके बाद जो है वो आगे अगर मुझे इसकी इंडस्ट्री में जाना है तो इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है, ये क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। एंड बैक टू द टॉपिक, ये सारी चीजें आपको फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपने रिसर्च करनी है, यू कैन गो टू चैट जीपीटी, यू कैन यूटिलाइज गूगल, यू कैन यूटिलाइज यूट्यूब, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। अनदर थिंग जो मैं चाहूंगा कि आप लोग करें, दैट इज कि साइड प्रोजेक्ट या कोई जो है वो ब्लॉग पोस्ट आप लिखें, या साइड प्रोजेक्ट करें, या आप कोई रिसर्च का कुछ लिखें, या इसके समय कुछ एनीथिंग यू कैन डू अपनी इंडस्ट्री में, अपने डोमेन में, दैट यू शुड बी डूइंग। ठीक है। उसके बाद एक चीज और जो मैंने जैसे बात की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, और मैंने उस पर अलग से एक आप लोगों के लिए जो है वो पूरी उसमें डिटेल से बात की, दैट इज राइट नाउ अ स्किल। आप कोशिश करें कोई भी जो है वो फ्री कोर्स हो जो कि इससे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, आप उसको जो है वो अगर परचेज कर सकते हैं परचेज करें, वरना नॉर्मली जो है वो आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब पर। यू कैन वॉच द सीरीज, और यू कैन वॉच द क्रैश कोर्स, और यू कैन वॉच द वीडियोस, और उस तरीके से आप अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करें। लाइक बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या और ये किस तरीके से होती है। ठीक है। और एक और चीज जो मैं इसमें ऐड किया, दैट इज लाइक यू शुड बी एडिंग 10 इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। जो भी आपकी निच है, या जो भी आपकी जो है वो डोमेन है, उसमें आप कोशिश ये करें कि कोई भी जो पाकिस्तान में या इंटरनेशनली जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लोग हैं, आप उनको ऐड करें। ठीक है, अपने पास एटलीस्ट लिंक्डइन पर तो ऐड करें। अब आप उनसे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप उनको जो है वो ऐड करें ताकि आपका जो है वो कनेक्शन बढ़े। अब आप देखें ना, अब आप अगर उनके कनेक्शन में ऐड हुए, देन इफ यू आर कमेंटिंग एनीथिंग ऑन देयर या ऑन देयर एनी पोस्ट, तो वो उनके जो कनेक्शन होंगे उनके पास भी आ रहा होगा। तो अगर वो ऑलरेडी जो है वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल है, तो उसके जाहिर सी बात है उसके कनेक्शन होंगे, और उसके कनेक्शन के पर अगर आपने उसके किसी भी पोस्ट पर मैसेज किया है, दैट मीन्स कि उसकी जितनी ऑडियंस होगी उस तक वो जा रही होगी, एंड इस तरीके से आपकी जो है वो प्लेटफॉर्म पे विजिबिलिटी बनती है। ठीक है। तो ये कुछ एक्शन प्लान्स थे जो कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग करना चाहें तो ये आपको काफी जो है वो हेल्प करेंगे मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, लास्ट में जो है ये सारी चीजें जो थी मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, ये इसका पर्पस यही था, और ये कुछ कुछ रिलेट कर रहे होंगे जो प्रीवियस सेशंस हैं IEEE के, उनसे भी। लाइक के जो पिछला सेशन था दैट वाज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू लाइक 2025, और इससे आगे जो स्किल्स चाहिए उनसे रिलेटेड, एंड देन यू हैव लाइक लिंक्डइन और बाकी सारी चीजें। और उसके हवाले से हमने बात की है। ओवरऑल भी जो मैं चाह रहा था वो पॉइंट आपको कन्वे करना कि आप किस तरीके से जो है वो अलग से पोजीशन कर सकते हैं इंडस्ट्री में, बिकॉज थाउजेंड ऑफ ग्रेजुएट्स आ रहे होते हैं, तो आप किस तरीके से स्टैंडर्ड कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश छोटी सी ये थी। नाउ अगर आप लोगों के पास कोई भी सवालात हो या कुछ भी मैं कहीं पर आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी राइट नाउ। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया अपनी बाकी डिटेल्स भी, लाइक लिंक्डइन, यू कैन जस्ट स्कैन दिस QR और आप जो है वो मेरे लिंक्डइन पे चले जाएंगे। तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी देयर एज वेल। और अभी आपके कोई सवाल हो, या पहले से समीर आपके पास कोई सवालात वगैरह आए हुए हो, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। Guys, feel free to ask your questions. आसिफ भाई से जितने सवाल पूछ सकते हैं पूछें आप लोग। सर मीनवाइल हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सोच रहे हैं, सर मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी। सर ये जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस होती हैं, आपके ख्याल में ये कितना रोल प्ले करती हैं? ठीक है। देखिए, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस में जो है ना वो हमारे पास सबसे पहली चीज तो लर्निंग लर्निंग तो आपकी अच्छी होती ही है। ठीक है। उसके बाद ये डेफिनेटली मैटर करती है कि यार आपने क्या किया। अब मैं आपको इसको बताता हूँ कि हमारे पास आईटी में तो मोस्टली आप जो है वो कर रहे होते हैं जो। जी जी, अब बकर एक सेकंड में ये आंसर कर लूँ।
तो उसमें समीर ये होता है कि हमारे पास आईटी में तो मोस्टली जो हो रही होती है वो ऑनलाइन ही हो रही होती है, ठीक है। और वो अब जो आपके पास है कोर्सेरा हो गया, इसके बाद जो है यूडेमी हो गया, ये सारे आपको जो सर्टिफिकेट्स देते हैं वो इस तरीके के सर्टिफिकेट देते हैं जो कि अब आप जो है वो कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, और वो जो है वो वेरीफाइड किस्म के होते हैं। तो दैट डेफिनेटली मैटर्स, और वो जो है वो आपकी जो सीवी होती है या आपका जो पोर्टफोलियो होता है या आपका जो रेज्यूमे होता है उसको डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं, और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं वो चीज। बिकॉज ये वही वाली बात हो गई कि आपने जो है वो एडिशनल क्या किया हुआ है, और आपका जो है वो किस किस तरफ आप जो है वो डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपने क्या कुछ अभी तक कर लिया है। तो डेफिनेटली आई रिकमेंड पीपल के आप जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज करें। थैंक यू सर। सर फवाद का एक क्वेश्चन है, चैट में जी उसने जी पूछे, इफ वी हैव स्किल बट नो सर्टिफिकेशन हाउ कैन वी एक्सेल इन इट? ठीक है। इस पर अभी जैसे मैंने बात की थी कि यार आपके पास स्किल है लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं है, तो स्किल जो है हमारी पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं दे वांट प्रूफ। तो आप कोई ना कोई जो है वो साइड प्रोजेक्ट्स या कोई ना कोई जो है वो कहीं डॉक्यूमेंट करके या इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपने कोई जो है वो रिसर्च की हुई है तो आप उसको नोशन पे डाल के जो है वो अपने पास उसका प्रिंट या कोई इस किस्म का वो कर सकते हैं। अगर आपने कोई सिमुलेशन का प्रोजेक्ट किया हुआ, जैसे हमने आर्डिनो सिमुलेशन की बात की थी, तो आप जो है वो उसको कहीं पर जो है वो उसकी कोई वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं, या इस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं कि इस तरीके से आप जो है वो एक तरीके से एज होगा आपको बाकी कैंडिडेट से। लाइक बाकी कैंडिडेट्स जो होंगे वो दे आर जस्ट रिलाइंग ऑन द डिग्री, बट यू ऑलरेडी हैव द स्किल एंड यू हैव समथिंग टू शो। ठीक है, यहाँ पर जो मैटर करता है दैट इज समथिंग टू शो। तो आपके पास जो है उसका कोई भी तरीका हो, किसी भी उससे हो, वो आप अगर शो करेंगे यू विल डेफिनेटली गेट एडवांटेज ऑफ इट। मेरा भी एक क्वेश्चन था, कैन आई आस्क? जी जी मेरा थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन था एक्चुअली। मेरी अभी डिग्री चल रही है एंड आई एम इन फाइनल ईयर इन ठीक है। सॉफ्टवेयर डोमेन। सो अभी आपको पता है एआई का बूम चल रहा है और हर तरफ एआई एमएल। सो और ये चीज़ ट्रेंडिंग है, लाइक हर 2-3 साल बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे अब एआई में अब आगे एजेंटिक एआई और ये चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो वुड यू सजेस्ट कि जब भी कोई इस तरह की नई वेव आती है कि तो हम लोग जो डेवलपर्स हैं हम टोटली ट्रांसफॉर्म कर जाएं उस वेव में, या अब हम जो अपना लाइक हम की डोमेन है, या जैसे फॉर एग्जांपल अब डेवलपर है एक जो पिछले 1-2 साल से डेवलपमेंट कर रहा है, अब उसको अगर फील आती है कि एआई एमएल की जॉब्स अच्छी हैं या ज़्यादा पे कर रही हैं, तो उसको ये चाहिए कि वो टोटली एआई में इमर्स हो जाए, या इट वुड बी बेटर अगर वो एआई के कॉन्सेप्ट सिर्फ उतने सीखे जो उसके डेवलपमेंट में यूज़ हो रहे हैं। तो इस अच्छा, पे क्या ओपिनियन होगा आपका? ठीक है ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। लाइक 2016 में 15-16 में जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा था, एट दैट टाइम जावा स्क्रिप्ट स्टैक, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो मैं उस हिसाब से आपको आंसर करता हूँ। तो उस टाइम पर जो है वो जावा स्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा बूम आया हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पर वी स्टार्टेड जावा स्क्रिप्ट, और हमने ये ध्यान में रखा था कि यार नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स में इसका क्या ट्रेंड होगा, हमने उस हिसाब से खुद प्लान किया था चीजों को। ठीक है, तो जब आप इंडस्ट्री में होते हो तो आप देख रहे होते हो कि यार नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स इस चीज का कितना ट्रेंड रहेगा। लाइक एआई की अगर हम बात करते हैं, तो 2023-24 में जब इससे पहले जो है वो एआई स्लोली जो है वो ग्रो कर रहा था, बट जब ये चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है और उन्होंने पब्लिक किया है, देन जो है वो एआई का एक बूम आया है, और उसके बाद जो है वो एआई काफी शिफ्ट हुई है। उसके बाद फिर गूगल ने भी बहुत ज्यादा इस पे काम तेज कर दिया, फिर उसके बाद जो है वो बाकी मेटा ने भी काम बहुत तेज कर दिया इस पर, और इस तरीके से जो है वो बहुत ज्यादा इस पर काम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब भी हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं कोई भी अपने लिए एक तरीके से निश ही कहूंगा मैं इसको, तो जब भी हम इसको सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास सबसे पहली चीज ये होती है कि हम ये देख रहे होते हैं कि यार ये जो चीज है ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में, नेक्स्ट 8 ईयर्स में कहाँ जा रही है। ठीक है, मैं अगर बात करता हूँ 2020 की या 19 की, तो उस टाइम पर अगर आपने देखा हो तो उस टाइम पर ब्लॉकचेन भी बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी। ठीक है, बट नाउ डेज ब्लॉकचेन जो है वो इतने ज्यादा उसकी एप्लीकेशन या इतने ज्यादा उसके वो नहीं आ रहे, ड्यू टू रेगुलेशन, ड्यू टू लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन एआई की जहां हम बात करते हैं तो एआई अभी जो है वो ग्रो कर रहा है एक तरीके से। अभी भी एआई में बहुत सारे गैप्स बाकी हैं, बहुत सारी जगहों पर जो है वो एडवांसमेंट्स बाकी हैं, काम हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 5 to 8 ईयर्स की, तो यस एआई इज द थिंग जहां पर आपको जाना चाहिए। अब आपका जो सवाल है क्या डेवलपमेंट के हवाले से, तो नाउ डेज व्हाट वी आर सीइंग कि आपका जो बहुत सारा चंक है ना डेवलपमेंट का, दैट इज हैंडल्ड बाय एआई इटसेल्फ। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी जो न्यू लोग हैं उनको ये इशू आ रहा है सबसे ज्यादा कि यार उनको टूल्स चलाना आते हैं, उनको एआई यूज करना आता है, मगर अगर एआई ने कोई मिस्टेक की है या कुछ किया है तो दे डोंट
नो हाउ टू डिबग द थिंग्स, और वो उस तरीके से जो है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टिल लाइक एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत वहां पर ज्यादा है। तो एज अ लाइक लास्ट ईयर स्टूडेंट, लाइक फाइनल ईयर स्टूडेंट, मैं रिकमेंड यही करूंगा कि यार अगर आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू हैव इंटरेस्ट इन एआई, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू एक्सेल इन एआई, ताकि आपको जो है वो एक एज मिल सके। और राइट नाउ देयर इज अ हाई डिमांड कि आपके पास जो है वो एआई एमएल इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है अभी इस वक्त। लाइक वी also आर हायरिंग एआई एंड एमएल गाइस, और ओवरऑल जो है वो एआई की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो आगे जो है 5 से 8 साल तक जो है वो आप ये कंसिडर करें कि ये जो एआई है ये अभी ग्रो करता रहेगा। Okay, thank you so much. That was really helpful. जी सर फवाद ने अपने पिछले क्वेश्चन से जो आपने उसका आंसर दिया था उसका एक फॉलो अप पूछा है कि स्पेसिफिकली फॉर अ बायोमेडिकल इंजीनियर व्हाट विल यू एडवाइस। अच्छा, बायोमेडिकल का आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि बहुत ज्यादा मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट एज आई मेंशन टू यू लाइक कि अभी चैट जीपीटी और बाकी जो टूल्स आ गए हैं, यू कैन डेफिनेटली चेक द ट्रेंड्स कि अभी ट्रेंड्स हमारे पास क्या चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। यार हमारे पास जो है वो ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, एंड नेक्स्ट 5 to 8, जब भी देखें हम किसी भी इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे होते हैं ना, जैसे मैंने अभी इससे पिछले क्वेश्चन का आंसर किया, हम ये आप अभी ग्रेजुएट हो रहे हो तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट 5 to 8 years आर क्रूशियल फॉर योर करियर, ठीक है। तो आप उस हवाले से ये देख सकते हैं कि यार अभी जो है वो क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड, और नेक्स्ट 5 years में चीजें किस तरफ जाएंगी, ठीक है। उसकी बेस पे आप डिसीजन लेते हैं कि यार मैंने इस तरफ जाना है, या मैंने इस चीज का कोर्स करना है, या मैंने इस चीज की सर्टिफिकेशन करनी है और इसमें जो है वो आगे प्रोसीड करना है। तो दिस इज द वे हम सेलेक्ट करते हैं कि यार हमने जो है वो आगे कैसे जाना है। डज एनीवन एल्स हैव एनी क्वेश्चंस हसीब भाई से पूछने के लिए। अबू। वालेकुम अस्सलाम। जी। ठीक है, देखो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि उस तरीके से उसको आप जो है वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। वॉज दैट द क्वेश्चन? ठीक है। ठीक है, इसके लिए देखिए, इसके लिए आपके पास ना अभी नाउअडेज जो वो है हगिंग फेस है, और बहुत सारे जो है वो अवेलेबल हैं टूल्स जिनके थ्रू आप जो है वो डिफरेंट मॉडल्स को और डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, और उनको आप सैंपल डेटा के साथ जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अब आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सैंपल डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल जहाँ पर आपको जो है वो स्क्रेप हुआ हुआ डेटा मिल जाता है, या आप जो है वो थोड़ा बहुत स्क्रैपिंग वगैरह करके उसको यूटिलाइज कर सकते हो। देखो जब आप पढ़ रहे होते हो उस टाइम पर आई एम नॉट श्योर अबाउट द कोर्स यू आर इनरोल्ड इन, लेकिन जो नॉर्मली कोर्स होते हैं दे ऑल्सो टेक अ प्रोजेक्ट और समथिंग जो कि चल रहा होता है साथ साथ आपके, ठीक है। आप कोशिश ये करें कि उस पर फोकस करके वो जो प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हैं थ्रू आउट दी कोर्स, आप उसको जो है वो कंटिन्यू करो और उसको कंप्लीट करो। देन जो भी वो आप कर रहे हो उसको आप जो है वो साथ साथ गिटहब पर या कहीं पर भी जो है ना वो आप अपना उसको पुश करते रहो, ठीक है। इस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, इस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हो। यस, जो एक्चुअल बेनिफिट आपको मिलेगा वो जब आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे होगे या कहीं पर आप जॉब कर रहे होगे तब मिलेगा। बट स्टिल लाइक व्हेन यू आर लर्निंग, आप जो वो लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनको ही आप कंप्लीट करो, कोशिश ये करो कि कंप्लीट करो उनको, और उनकी ही जो आपकी एवेल्यूशन वगैरह है वो आपके जो भी कोर्स के इंस्ट्रक्टर वगैरह है उनसे आप एवेल्यूशन करवा के, या उनसे आप शाउट आउट ले सकते हो, या आप उनको कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार वो कमेंट कर दें या कोई इस किस्म का। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू मोर विजिबल। Can I ask question? जी हसी भाई, वन मोर थिंग एक्चुअली, जब हम किसी बड़ी कंपनी को टारगेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब, तो उनका एक राउंड होता है टेक्निकल राउंड फॉर स्पेसिफिकली डीएसए, नो मैटर जॉब डेवलपमेंट की हो या एआईएमएल की हो। तो वो राउंड क्लियर करना आई गेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इफ़ यू वांट टू लाइक प्रोसीड टू द एमएल या डेवलपमेंट इंटरव्यू। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट या एमएल के क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू, वुड यू सजेस्ट कि हम डीएसए पे या जो
कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं उन पे उतना ही फोकस करें? देखिए, जो हमारे पास ओवरऑल जब हम इंटरव्यू क्रैक करने की बात करते हैं ना, तो उसमें नॉर्मली हमारे पास यही होता है कि हमारे पास मिक्स होती है चीजें। दे आर जब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम यहाँ पर गीक्स ऑफ कराची के लिए भी हायर कर रहे होते हैं ना, व्हाट वी रियली डू इज वी डोंट ओनली सी दी टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। हमारे पास जो है वो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जो है वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, आपके जो है वो एक तरीके से समझ लें कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हम देख रहे होते हैं, आपकी जो कोडिंग स्किल्स है हम वो भी देख रहे होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन भी देख रहे होते हैं हम लोग, ठीक है, और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देख रहे होते हैं। तो जब आप बात करते हैं बड़ी कंपनीज की भी, दे आर ऑल्सो लुकिंग इनटू दोज थिंग्स। अब उनके पास जो है वो टूल्स अलग होते हैं, उनके पास प्रोसीजर्स अलग होते हैं, वो उसके थ्रू कर रहे होते हैं। बट अगर आप कहेंगे कि जो है वो सिर्फ कोडिंग इंटरव्यू से मैं जो है वो जॉब हंट करूंगा और मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और अगर आप कहेंगे कि सिर्फ जो है वो मैं फोकस और दूसरी तरफ कर लूँ तो मैं जो है वो पास कर लूंगा इसको, ऐसा भी नहीं है। सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक आपको बैलेंस करना होता है इस चीज को। लाइक वुड यू थिंक कि अगर एक आपके पास कैंडिडेट हो जिसका डीएससी लेवल स्ट्रांग हो, लाइक कोडिंग में इंटरव्यूज में उसने आउट परफॉर्म किया हो, बट उसका एमएल या जो डोमेन नॉलेज है वो थोड़ा बेसिक लेवल का हो, तो वुड यू बेट ऑन दैट गाय कि यार अगर इसको कोडिंग नॉलेज अच्छा है दैट मींस ही कैन डू इट? अच्छा, इसमें देखिए, इसमें हम लोग जो मेन चीज देखते हैं ना, वो देखते हैं कि उस जो कैंडिडेट है उसमें पोटेंशियल कितना है। ठीक है, पोटेंशियल इन अ सेंस कि उसकी लर्निंग की जो है वो लर्निंग एबिलिटी उसकी, या तो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ये करते हैं कि उसकी लर्निंग की जो वो है एक तरीके से वो कितना इंथुसिज्म उसका है, और वो किस तरीके से आगे अपने करियर को प्रोसीड करना चाह रहा है। ये सारी चीजें देख के फिर हम उसको सिलेक्ट करते हैं। दैट इज द वे यूजुअली द कंपनीज डिसाइड। बिकॉज कंपनीज जब किसी भी टीम मेंबर को ले रही होती है, खासकर फ्रेश ग्रेजुएट को, तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक इन्वेस्टमेंट फॉर देम एज वेल, कि लाइक कि वो आपको 3 to 4 months या एटलीस्ट 6 months वो आपको इन्वेस्ट करके आपको मार्केट रेडी करेंगे। देन यू विल बी एबल टू बी प्रोडक्टिव फॉर देम। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें देख रहे होते हैं कि यार, आप जैसे आपने बेसिक की बात की, तो इसके अलावा जो है वो आपके और भी चीजें, जैसे मैंने बात की कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई और बहुत सारी चीजें हो गई, ये सब कुछ देख के देन हो रहा होता है। तो आप कोशिश ये करें कि दोनों चीजों में करें। मेरे पास एक कैंडिडेट था, ही वॉज नॉट अ ग्रेजुएट एक्चुअली, सही है, ही वॉज नॉट अ ग्रेजुएट, ही वॉज ही हैज डन ओनली अ सर्टिफिकेशन। ठीक है, 3 साल की उसने सर्टिफिकेशन की थी, ठीक है, और ग्रेजुएट नहीं था। बट ही व्हेन ही केम टू इंटरव्यू, उसका हमने जब ये इसका डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह का जब हमने उसका टेस्ट लिया, ही वाज एक्सीलेंट इन दैट। मैंने उससे सवाल पूछा था कि मैंने कहा था यार आपने ये कैसे किया था। तो ही मेंशन कि वो अपने फारिग टाइम में जो है वो लीड कोड और बाकी जो ये आपके हैकर रैंक और इनके जो क्वेश्चंस है या पजल्स है वो इनको सॉल्व करता था। उससे उसने अपनी जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स की स्किल को इम्प्रूव किया। एंड और उसका जो इशू था कि उसने जो है वो डिग्री नहीं थी, बट स्टिल लाइक ही कोप अप विद दैट, और ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स इन आवर टीम। तो इस तरीके से जो है ना वो चल रही होती है चीजें। सही सही, थैंक यू सो मच। ठीक है, और कोई चीज हो आप, और कोई क्वेश्चन हो किसी के? सर मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन जो है वो यहीं तक है। तो बिफोर वी रैप अप सर, मैं IEEE और बज़र BME की तरफ से एक आपको छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन जो है वो प्रेजेंट करना चाहता हूँ। So just give me a second. थैंक यू सो मच समीर फॉर दिस, एंड रियली आप लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं देख रहा था ओवरऑल पिछले भी आप लोगों के जो वेबिनार्स थे उनको भी मैंने गो थ्रू किया था, एंड यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग जॉब। मतलब यूनिवर्सिटी थैंक यू सर। ग्रेजुएट्स के लिए जो है वो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि दे शुड हैव दोज थिंग्स, एंड थैंक कीप यू अप सर। दैट। Thank you. या Thank you for taking the time, and thank you for blessing us with so many insightful stories and words. थैंक यू सो And मच फॉर इनवाइटिंग मी। thank you, sir. The pleasure is all अल्लाह mine. हाफिज। Allah Hafiz, sir.